تھے اور دوسری طرف خواجہ غلام حسن سنجری اور نواسہ فرید الدین خواجہ سید محمد متمکن تھے۔ ان کے ساتھ ہی دیو گڑھ کا راجہ ہردیو گوری کے مکھ پر نظر ٹکائے بیٹھا تھا۔ ان سے آگے عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد کے درمیان ایک خوش نوا صداکار اپنی مترنم آواز میں اپنے ہاتھ ادائے خاص سے جان محفل کی طرف کرتے ہوئے امیر خسرو کا گیت چھاپ تلک سب چھین ری منہ سے نینا ملائی کے گا رہا تھا۔ گلوکار نے چھاپ تلک کا انترا بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ چھاپ تلک منہ سے نینا کی آواز نے امیر خسرو کو ماہی بیاب کی طرح بے سدھ کر دیا۔ عرب یار نظام الدین اولیاء بھی کیف و مستی میں تھے۔ محفل میں موجود حاضرین خود رفتگی میں سر دھن رہے تھے۔ نغمہ گو نے محفل کے ذوق کو سیاتشا کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا، چھاپ تلک سب چھین ری منہ سے نینا ملائی کے سینا لڑائی کے اپنی سی کر لینی رے منہ سے نینا ملائی کے چھاپ تلک سب چھین ری منہ سے نینا ملائی کے خسرو نظام کے بل بل جاؤں منہ سے سہاگن کیتی رے منہ سے نینا ملائی کے چھاپ تلک سب چھین ری منہ سے نینا ملائی کے چھاپ تلک۔ پوری سنگت پیار کی چھاپ تلک پر سر نگو تھی۔ کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی وجد میں تھے۔ ادھر ہردیو کے ہوش گم ہونے لگے تھے۔ وہ حضرت کے چہرے کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے کی تاب پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ ہردیو کچھ ہی عرصہ قبل شیخ المشائخ کے خلیفہ خواجہ حسن سنجری کے ساتھ دلی آیا تھا۔ خواجہ حسن سنجری کی زبانی ہی شیخ المشائخ کا ذکر سن کر اس کے دل میں حضرت نظام الدین اولیاء کے دیدار کی تمنا جاگی تھی اور وہ دلی حاضر ہو گیا۔ ہردیو کو خواجہ سید محمد کے ہاں قیام کرنے کا کہا گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ رہنے لگا اور باقاعدگی سے محفل میں شریک رہا۔ اسے یہاں آنے کے بعد ہر وقت ایک عجیب قسم کا کیف گھیرے رکھتا۔ ابھی گزشتہ رات ہی وہ امیر خسرو کی میزبانی میں گزار کر رہا تھا۔ آج صبح وہ دلی کے بازار کو دیکھنے کے لیے بھی گیا۔ بازار میں ایک دکاندار سے اس کا پالا پڑ گیا۔ دلی کے بازار میں بخارا، ترکستان اور ایران کا سامان بک رہا تھا۔ ہر قسم کے کپڑے، پوستین، کمبل، قالین، کمانیں، ڈھالیں، تیر تلواریں اور خنجر دکانوں میں سجے تھے۔ وہ دکان پر رکا۔ ترکی دکان میں ایک ہندوستانی ملازم نے اسے بڑے اخلاق کے ساتھ چیزوں کے متعلق بتلانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ہردیو کا حال پوچھا، مگر ہردیو کے منہ سے امیر خسرو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کا نام سنتے ہی وہ بگڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، دونوں بے دین ہیں، اعلانیہ گانے سنتے ہیں، قوالی کی مجلسوں میں ناچتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت میں مسلمانوں پر گانا اور بجانا سننا حرام ہے۔ امیر خسرو کے پیر خواجہ نظام لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں۔ انہوں نے مکر اور فریب کا جال بچھا رکھا ہے۔ ہردیو کو یہ باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے دکاندار سے کہا، برائے مہربانی خاموش رہیں، میں ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ دکاندار نے تعجب سے پوچھا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم ہندو ہو، پھر تمہیں ایک مسلمان فقیر سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ ہردیو نے جواب دیا، میں دکن سے محض انہی کی زیارت کرنے کے لیے دلی آیا ہوں، اور میں نے ان کی مجلس کو دیکھا ہے اور ان کی باتوں کو سنا ہے، اور ان کے مقبول مرید کے ہاں کل رات میں رہا۔ میں نے ان سب میں کوئی بات مکر اور فریب کی نہیں دیکھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگ امیر خسرو کے پیر کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں، مگر میں نہیں جانتا کہ اسلامی شریعت کا کیا حکم ہے، کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور گانے بجانے کی نسبت بھی مجھے خبر نہیں کہ وہ اسلامی شریعت میں اچھا ہے یا برا۔
मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अमीर खुसरो और उनके पीर में कोई बात मकर और फरेब की नहीं। फिर हरदेव ने उस दुकानदार से कहा कि तुम कभी अमीर खुसरो के पीर के पास गए हो और तुमने उनकी मजलिस को देखा है? दुकानदार ने कहा, मैं ऐसे शख्स की महफिल में जाना गुनाह समझता हूँ जो लोगों से अपने सामने सजदे कराता हो और गाना बाजा सुनता हो। हरदेव ने कहा, तुम एक दफ़ा वहाँ जाओ और उन्हें देखो। सुनी सुनाई बातों पर राय कायम करना अक्लमंदी नहीं है। मुझे देखो, मैं एक हिंदू हूँ और इतनी दूर से सिर्फ उनकी ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। मेरा घर दिल्ली से 1000 कोस के करीब दूर होगा। दुकानदार ने पूछा, तुमने बिन देखे इतना बड़ा सफ़र क्यों किया? हरदेव ने जवाब दिया, उनके एक मुरीद से उनके अहवाल सुने और दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। दुकानदार ने कहा, गोया तुमने भी सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया, हालांकि तुम अभी मुझसे कहते थे कि सुनी सुनाई बात पर राय कायम करना अक्लमंदी नहीं है। हरदेव ज़रा झिझका और कुछ लाजवाब सा हो गया, मगर फिर फौरन कहा, अमीर खुसरो के पीर के जिक्र ने मुझे 1000 कोस से खींच लिया। दुकानदार ने कहा, अब बताओ, तुमने अमीर खुसरो के पीर की मजलिस देखी, उनकी बातें सुनी, क्या तुमने अपने हिंदू मज़हब के मुआफिक कोई बात वहाँ पाई? हरदेव ने कहा, मैंने वहाँ ना हिंदू मज़हब के मुआफिक कोई बात पाई और ना मुखालिफ कोई बात देखी, लेकिन उनसे मिलने के बाद मेरे दिल पर इतना ज़्यादा असर हो गया है कि अब मैं समझता हूँ कि मेरे सफ़र की मेहनत अकारत नहीं गई। दुकानदार बोला, अमीर खुसरो की माँ हिंदू है, इस वास्ते वो हिंदुओं की बहुत हिमायत करता है। वो तो कहता है कि खल्क मी गोयद के खुसरो बुत परस्ती मी कनंद, आरे आरे मी कम बा खल्क व आलम कार नीस्त। मतलब ये कि वो तो कहता है कि खल्क कहती है खुसरो बुत परस्ती करता है। हाँ हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे दुनिया वालों से कुछ काम नहीं। दुकानदार ने कहा, तुम भी बुत परस्त और तुम्हारा दोस्त अमीर खुसरो भी बुत परस्त है, और अमीर खुसरो का पीर भी कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए तुम उसके गर्विदा हो गए हो। अब हरदेव अपना गुस्सा ना दबा सका और कहा, अब मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। मुझे दुख है कि मैं इतनी देर तक भी यहाँ क्यों रुका रहा। ना मैं यहाँ ठहरता और ना ही ऐसी बातें सुननी पड़ती। दुकानदार हंसा और कहा, मैं साफ और खरा मुसलमान हूँ, तुम मुसाफिर और अजनबी हो और मुसलमान हुकूमत के ज़िम्मी हो, इस वास्ते मैंने तुमको बुराई से बचाना ज़रूरी समझा। हरदेव ने ये सुनकर पूछा, ज़मी का क्या मतलब होता है? दुकानदार ने जवाब दिया, जिसकी हिफाजत मुसलमान हुकूमत के ज़िम्मे हो उसको इस्लामी शरीयत में ज़मी कहते हैं। मैं इस्लामी हुकूमत का एक फ़र्द हूँ और तमाम हिंदुओं को मुसलमान हुकूमत का ज़मी समझता हूँ और उनकी हर किस्म की हिफाजत का ख्याल रखना अपना फ़र्ज समझता हूँ। हरदेव ने दुकानदार से कहा, तुम्हारे इस ख्याल से मुझे खुशी हुई और ख़ास कर लफ्ज़ ज़मी को आज तुमसे सुना और मतलब समझा। अमीर खुसरो के पीर ने मुझसे फरमाया था कि जिस आदमी से कुछ कोई सीखता है वो उसका उस्ताद होता है। यूँ तुम भी मेरे उस्ताद बन गए, मगर चलते चलते मैं दोबारा तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम एक बार अमीर खुसरो के पीर के पास जाओ और इस गुनाह से बचो जिसमें नादानिस्ता मुब्तला हो। चूँकि तुमने मुझे ज़मी समझकर मेरे फ़ायदे की बात समझाई, इसीलिए शुक्रगुजारी के तौर पर मैं समझता हूँ कि तुम्हें खामखा की बदगुमानी से बचाऊं। दुकानदार ने हंसकर कहा कि अच्छा, मैं कल शाम को ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि दिन के वक्त मुझे दुकान से फुर्सत नहीं मिलती। हरदेव ने कहा, तो फिर वो कल इस जगह मिलेगा। दुकानदार बोला, मगर तुम इसका वादा करो कि अगर मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए तो मेरी इस मुखालफत का जिक्र न करना, ताकि मैं देखूं कि अमीर खुसरो के पीर को मेरे ख्यालात की खबर हुई या नहीं। हरदेव ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, अभी मैं वहाँ जाना मुलतवी करता हूँ, तुम आज ही वहाँ चलो। मैं आज शाम तक तुम्हारा मेहमान हूँ
और शाम को तुम्हारे साथ ही हज़रत के पास चलूँगा और ऐसी जगह बैठूँगा कि हज़रत की निगाह मुझ पर न पड़े और तुम मुझे देखते रहो ताकि तुम्हें ये यकीन रहे कि मैंने तुम्हारा हाल किसी के गोश नहीं गुजारा। हरदेव दुकानदार के पास रुका रहा और फिर असर के वक्त हज़रत की खानकाह में आया। वो दोनों खानकाह के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत भीड़ थी। हरदेव मजलिस की पुश्त पर बैठ गया, मगर दुकानदार सीधा हज़रत साहब के सामने गया और अस्सलाम वालेकुम कहकर सब लोगों से आगे हज़रत के पास बैठ गया। हरदेव को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर उधर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार ने बहुत ही मोहब्बत से उसे अपने पास बिठा लिया और फरमाया, तुम ग़ालिबन इस शहर के रहने वाले हो। दुकानदार ने कहा, हदीस शरीफ में आया है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और सब मुसलमान इसमें मुसाफिर हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो। हदीस मुबारक याद दिलाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं भी जब गाना सुनता हूँ तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लड़कियों का गाना सुन रहे थे। इतने में वहाँ आपके एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने लड़कियों को गाने से रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लड़कों को गाने बजाने से ना रोको। हर कौम की एक ईद होती है और आज इन लड़कियों की ईद का दिन है। और जब हज़रत ने ये बात पूरी की तो दुकानदार ने हरदेव की तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर खौफ के असरात वाज़े थे। उधर हज़रत उसके बाद फरमा रहे थे कि मुसलमानों को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह के कलाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को याद रखें। कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और कुरान मजीद में ये भी लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके माँ बाप और बहन भाइयों ने सजदा किया। ये दोनों चीज़ें कुरान मजीद में मौजूद हैं, मगर ऐसा कोई हुक्म कुरान में नहीं है कि मुसलमान को किसी आदमी के सामने ऐसा ताज़ीमी सजदा ना करना चाहिए जैसा कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किया था और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर ने अपने बेटे को किया था। इसीलिए ये साबित होता है कि इबादत के सजदे में और ताज़ीम के सजदे में बड़ा फ़र्क है। अगर फरिश्तों का सजदा इबादत का सजदा होता तो खुदा फरिश्तों को हुक्म देकर शिरक ना कराता, और अगर ताज़ीम का सजदा नाजायज़ होता तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सजदा ना करते। हम दरवेशों के मसलक में अदब और ताज़ीम ही सबसे बड़ी चीज़ है। अदब और ताज़ीम से अताअत पैदा होती है, और खुदा ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह की अताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और जो तुम में सहब अमर हो उनकी अताअत करो। बस जो लोग अपने पीरों के आगे सरजमीन पर रखते हैं तो वो इबादत का सजदा नहीं करते बल्कि ताज़ीम का इजहार करते हैं, जिससे उनमें अताअत पैदा होती है। हर पीर की अताअत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत होती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से खुदा की अताअत पैदा होती है, और खुदा की अताअत से इंसान की पैदाइश का मकसद पूरा हो जाता है। हज़रत की ये बात सुनकर दुकानदार ने चीख मारी और वो हज़रत के कदमों में सर रख कर चीखें मार मार कर रोने लगा। रोता था और कहता था, मुझे माफ़ कीजिए, मैं बड़ा गुमराही में था। हज़रत ने अपने पीरजादे ख्वाजा सैयद मोहम्मद बिन सैयद बदरुद्दीन इसाक बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, इनको उठाओ, इनको पानी पिलाओ और इनको खाना खिलाओ, इनके वास्ते हलवा लाओ। उन्होंने हमें हदीस याद दिलाई है, हमें कुरान मजीद याद दिलाया है। इन्होंने हम पर बहुत एहसान किया। और फरमाया, आज वो हिंदू मेहमान हरदेव कहाँ है? हरदेव ये सुनकर लोगों के पीछे से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, गुलाम यहाँ हाजिर है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार ने हरदेव की तरफ देखा।
حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا ہم سب خدا کے ذمی ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا ذمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی ویسی حفاظت کر سکے جیسی خدا اپنے بندوں کی کر سکتا ہے۔ دکاندار نے پھر ایک چیخ ماری اور مرغ بسمل کی طرح صحن میں لوٹنے لگا۔ اتنے میں خواجہ سید محمد کچھ کھانا، حلوہ اور پانی لے آئے۔ حضرت نے دکاندار کو اپنے قریب بلایا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کا ایک نوالا اس کے منہ میں دیا۔ کھانا کھانے کے بعد دکاندار نے دونوں ہاتھ باندھ کر رقت آمیز لہجے میں کہا، حضور مجھے بیعت فرمائیے۔ حضرت صاحب نے ایک پل کے لیے خواجہ محمد کی طرف دیکھا اور پھر چھلکتی نگاہوں سے اجودن کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یہ خواجہ سید محمد میرے حضور فرید الدین شیخ العالمین کے نواسے ہیں، تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ ادھر دور بیٹھے سازندے نے اپنے باجے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پرسوز آواز میں ایک بار پھر کہا، چھاپ تلک سب چھین ری، منہ سے نینا ملائی کے، نینا ملائی کے سینا لڑائی کے، چھاپ تلک سب چھین ری، منہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک۔